ट्रांसपोर्ट, इसमें लिखिएगा इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट, in biology transport is a life process in which a substance absorbed or made in which a substance absorbed in which a substance absorbed ब्रैकेट में लिखिएगा और made in one part of the body of an organism in one part of the body of an organism in one part of the body of an organism is carried to other parts of its body is carried to other parts of its body is carried to other parts of its body is carried to other parts of its body। भाई एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक पार्ट में कोई चीज एब्जॉर्ब हुई, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो बॉडी में एक पार्ट में एब्जॉर्ब हुई, कहाँ पर एब्जॉर्ब हुई, हमारे लंग्स में, लंग्स से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी के सारे पार्ट्स में, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। हम अगर बात करें कि वैसे भाई ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो ऑटो चलते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह तक, या जो बसें चलती हैं, या हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट, वही ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब वो जो ट्रांसपोर्ट है, वो बायोलॉजी के टर्म्स में, यानी कि लाइफ प्रोसेस के टर्म्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ये होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई चीज बनी, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन अगर कहीं बॉडी में मैन्युफैक्चर होता है, तो वो जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ऐसे ही ब्लड अगर है, तो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक जाना ब्लड का, तो वो भी ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आएगा। ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्ट्रीब्यूट होना, वो भी ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आएगा। समझ गए? तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी में कोई चीज एब्जॉर्ब हुई वो, या कोई चीज बनी वो, उस चीज का ट्रांसपोर्ट होना, उस चीज का एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, इसमें लिखें the only substances which are to be supplied to a plant the only substances which are to be supplied the only substances which are to be supplied the only substances which are to be supplied to a plant through a transport system to a plant through a
to a plant through a transport system are water and minerals. Are water and minerals. Water and minerals. ब्रैकेट में लिखेंगे which they can't get from the air. Which they can't get from the air. Full stop. Another job of the transport system of plants मैं लिखवा रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ. Another job of the transport system of plants. Another job of the transport system of plants is to transport food prepared in the leaves. Is to transport food. Is to transport food prepared in the leaves. Is to transport food prepared in the leaves to the various parts of the plant to the various parts of the plant to the various parts of the plant like stems, roots, etc. Like stems, roots, etc. The plants have two types of conducting tissues. Next point. The plants have two types of conducting tissues. Have two types of conducting tissues. The plants have two types of conducting tissues called xylem and phloem. Called xylem and phloem. PHLOEM. Called xylem and phloem. ठीक है, अब इसके बाद नोट करें, xylem carries water and minerals. Xylem carries water. Xylem carries water and minerals. Xylem carries water and minerals. अगला लिखें phloem. Phloem. Phloem carries the food materials which the plant makes. Phloem carries the
नोट करें, फ्लोएम कैरीज द food materials which the plant makes. ऑफ हो गया फिर से। सर वापस से आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। ठीक है, अभी ठीक है। यस सर। Okay, phloem carries the food materials which the plant makes. Phloem carries the food materials which the plant makes. It also carries the hormones made by the plants. It also carries the hormones made by. It also carries the hormones made by the plants in their made by the plants in their root and shoot tips. In their root and shoot tips. In their root and shoot tips. ठीक है, देखिएगा, अब मैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात करता हूं तो प्लांट्स के केस में हम ये बोलेंगे द ओनली सब्सटेंसेस which are to be supplied to a plant through a transport system are water and minerals which they cannot get from air. जो मेन चीज है जो प्लांट्स को डेवलप करने के लिए जरूरत होती है जिन चीजों की, वो होता है या तो वाटर या फिर मिनरल्स। वो उनको हवा से नहीं मिलता, ना तो पानी हवा से मिलेगा और ना ही मिनरल्स हवा से मिलेंगे। मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से। ठीक है, और वाटर कहाँ से मिलेगा? वो भी सॉइल से। सॉइल से कैसे? या तो वो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेगा कि जमीन में जो उसकी जड़ें फैली हुई हैं तो वो नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और या फिर हम उसको पानी डालेंगे एक्सटर्नली, हम उसको पानी डालेंगे तो पानी को सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है, और सॉइल से धीरे 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 प्लांट को जितनी जरूरत होती है प्लांट उतना पानी लेता रहता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट देखें। Another job of the transport system of plants is to transport food prepared in the leaves to the various parts of the plant like stems, roots, etc. दूसरा काम ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या होता है कि to transport food prepared in the leaves to the various parts of the plant like stems, roots, etc. कि जो लीव्स में फूड जो है वो लीव्स में ही प्रिपेयर होता है, उसको प्लांट के सारे पार्ट्स में, चाहे स्टेम हो, चाहे उसका शूट हो, चाहे उसकी रूट हो, सब जगह फूड को शिफ्ट करना, फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम होता है। उसके बाद द प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पर कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या है? जैसे हम मान लीजिए कंडक्टर की बात करते हैं, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिक करंट को वो फ्लो करवा दे। हीट का कंडक्टर का बात क्या है कि एक जगह से मैंने किसी कोई लोहे की रॉड है, उसको मैंने एक जगह से गर्म करा तो उसका दूसरा कॉर्नर भी गर्म हो गया, मतलब हीट जो है वो ट्रेवल कर रही है उसमें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन होना, हीट का कंडक्शन होना, लाइट का कंडक्शन होना, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होना। ठीक है, इसी तरीके से फूड मटेरियल्स का जो कंडक्शन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, दैट टेक्स प्लेस थ्रू टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम का बहुत बेसिक सा काम है, जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। जो उसको वाटर की और मिनरल की जरूरत होती है प्लांट को, तो वो कौन कैरी करता है? जाइलम। ठीक है, सेकंड देखिएगा फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? इट कैरीज द फूड मटेरियल्स विच द प्लांट मेक्स। जो प्लांट फूड मटेरियल बनाता है, जो प्लांट के अंदर फूड मटेरियल बनता है, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू। इट ऑल्सो कैरीज द हॉर्मोन्स मेड बाय द प्लांट्स इन देयर रूट एंड शूट टिप्स। जो प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स बनते हैं, उन हार्मोन्स को रूट की आखिरी टिप तक पहुंचाना। और शूट क्या होता है? शूट जो ऊपर वाला पार्ट है, मिट्टी के अंदर वाले पार्ट को तो रूट बोलते हैं, और मिट्टी के ऊपर वाले पार्ट को शूट बोल देते हैं। तो रूट के आखिरी टिप तक पहुंचाना
और शूट के आखिरी टिप तक पहुंचाना। किनको? हॉर्मोन्स को। ये काम भी कौन करती है? ये वाला काम करती है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है। जाइलम का काम सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स मिनरल्स का। फ्लोएम का काम ये होता है कि जितना भी फूड मटेरियल बना है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और हॉर्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना रूट के आखिरी टिप तक और शूट के आखिरी टिप तक। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए। यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे नोट करेंगे हम ट्रांसपोर्ट एंड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसमें है प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। 4-5 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। प्लांट्स रिक्वायर वाटर, plants require water for making food or making food by photosynthesis. Water and minerals are absorbed from the soil. अगला पॉइंट, water and minerals are absorbed from the soil by the roots of the plant, are absorbed water and minerals are absorbed from the soil by the roots of the plant, by the roots of the plant and transported to the various parts of the plant to the various parts of the plant like stem, leaves and flowers. Like stem, leaves and flowers. Like stem, leaves and flowers. Full stop. In the leaves, water is used in making food by photosynthesis. In the leaves, water is used in making food by photosynthesis. Water is used in making food by photosynthesis. Water is used in making food by photosynthesis.
अगला पॉइंट नोट करें। अगला पॉइंट नोट करें। द water and minerals dissolved in it the water and minerals dissolved the water and minerals dissolved in it move from the roots of the plant 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 to its leaves to its leaves move from the roots of the plant to its leaves through the two kinds of elements of the xylem tissue through the two kinds of elements two kinds of elements through the two kinds of elements of the xylem tissue called xylem vessels and tracheids called xylem vessels and tracheids। तो इसमें देखिए द वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन इट, पहले पूरा देख रहा हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हमें ये देखना है कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट बाद में देखेंगे। भाई दो तरीके का हमने देखा ना, या तो जाइलम का अगर मैं देख रहा हूँ तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर और मिनरल्स का, ठीक है। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड मटेरियल्स का या फिर हार्मोन्स का। तो पहले मैं वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ, यानी कि मैं पहले जाइलम को डिटेल में पढ़ लूँ, ठीक है। तो जाइलम की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो अगर फूड भी उसको प्रिपेयर करना है ना प्लांट को, तो उसके लिए उसको वाटर की जरूरत है। उसको वाटर मिलेगा तो वो फूड प्रिपेयर कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और तभी वो ग्रो कर पाएगा, नहीं तो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो ये जो वाटर है, ये वाटर कहाँ से प्लांट को मिलता है, वो सॉइल में से एब्सॉर्ब करता है। अच्छा, सॉइल में कैसे जाता है, सॉइल में या तो ये है कि भाई नेचुरली अगर नीचे से मिट्टी गीली है, ठीक है, अगर वाटर लेवल ठीक है, तो नीचे से जो मिट्टी है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करके उस पानी को प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। और अगर मिट्टी गीली नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से उसमें वाटरिंग करते हैं प्लांट्स के, प्लांट भाई पौधों में पानी डाला जाता है ना, तो हम पौधों में पानी डालते हैं। तो पौधों में जब पानी डालते हैं तो वो पौधे अपने आप ही बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। रीजन क्या है, ये सॉइल को आपने गीला कर दिया, तो सॉइल में से वो पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड बनाते रहते हैं। उसके बाद देखिएगा, इन द लीव्स वाटर इज यूज्ड इन मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। लीव्स में क्या होता है, लीव्स में वाटर को यूज करा जाता है किस काम के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, फूड प्रिपरेशन होता है। अच्छा, द वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन इट मूव फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट टू इट्स लीव्स थ्रू द टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम टिश्यू। द वाटर एंड मिनरल्स जो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, प्लांट्स के अंदर जो वाटर और मिनरल डिसॉल्व हो जाते हैं,
तो वो जब मूव करते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में, तो वो दो तरीके की जाइलम टिश्यूज की हेल्प से करते हैं, एक तो जाइलम वेसल और एक ट्रैकीड्स। तो अब मुझे जाइलम वेसल का फंक्शन पढ़ना है और ट्रैकीड्स का फंक्शन पढ़ना है। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं इसमें। अब लिखेंगे बेटा, फर्स्ट आप डालेंगे हेडिंग जाइलम वेसल्स। Xylem vessels. The xylem vessel is a non-living long tube The xylem vessel is a non-living long tube is a non-living long tube which runs like a drain pipe through the plant. एक मिनट में आ रहा हूं मैं। The xylem vessel is a non-living long tube which runs like a drain pipe through the plant. Which runs like a drain pipe through the plant. Next point लिखें, a xylem vessel is made of many hollow dead cells A xylem vessel is made of many hollow dead cells called vessel elements joined end to end. Called vessel elements joined end to end. इतना नोट कर लीजिए और इतना ही कर लीजिए, आज बस इतना ही करवाऊंगा। और
थोड़ा आज आप लोगों को जल्दी छोड़ रहा हूँ, और बाकी कल जो है मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी क्लास में नहीं ले पाऊंगा। अगर हुई तो मैं मैसेज कर दूंगा, क्योंकि रिजल्ट आप जो है रिजल्ट का कल थोड़ा सा एक छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं हम 10th क्लास का। ठीक है, रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा आया है, आप लोगों को भी मैं एक दिन के अंदर बताऊंगा कि रिजल्ट आपके कैसा आया है। ठीक है, चलिए जी बेटा, आज इतना ही करेंगे फिर। चलिए, थैंक यू सर, नमस्ते सर। ओके, Thank you, sir. नमस्ते। थैंक यू सर। ओके ओके।